हेलो, ठीक है। इको तो नहीं कर रही? एक ऑडियो सेक्शन है जो आपने पेन ड्राइव लगाई हुई है, एक ऑडियो सेक्शन है। ऑडियो चलाइए तो। यहाँ पर उपस्थित उद्भट विद्वान प्रोफेसर के.एम. पांडे और अपने द्विवेदी जी हैं एक महान संस्कृत विद्वता की परंपरा के उत्तराधिकारी सदाशिव द्विवेदी जी, प्रोफेसर तिवारी, मेरी शिष्या कहाँ है? अंजित है यहाँ पे, पल्लवी है तो यहाँ पे उपस्थित हमारे सारे विद्यार्थी, अंजू से लेकर सती से लेकर प्रोफेसर शुक्ला से लेकर पीछे जितने बैठे हुए हाथ खड़ा कर रहे हैं, इतनों के नाम लेना संभव नहीं है। एक मेरी विद्यार्थी, हमारी भतीजी भी लगती, शशि, कहाँ है वो शशि? सती उनियाल शशि वाला उनियाल। तो आप लोग, हमारी डॉक्टर, क्या पूरा नाम क्या है? और राखी पंचोला जी हैं जो संचालन कर रही हैं, और हमारे इंजीनियर जो, जिनके भरोसे ये मैं अब कुछ दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, वैसे तो अपने देश की रामलीला का जो इंटरप्रिटेशन प्रोफेसर के.एम. पांडे जी ने दिया, क्योंकि राम को बहुत वेरी रिसेंटली ही and his narrative is being dragged into controversy by certain forces within inverted comma. ये जरा थोड़ा इसको कम करिए वैसे, उसकी आवाज़, ये बहुत जो तेज से जो चल रहा है, इसकी आवाज़ कम करिए या इसको बंद कर दीजिए कोई। वी डोंट नीड इट। ये जो बड़ा पंखा है ना, इसको बंद कर दीजिए, लोगों को सुनाई नहीं देगा, या कम कर दीजिए उसे। दो शब्द सुनाई दें पर साफ सुनाई दें। मैं थिएटर का आदमी हूँ, हमें we have great problem with acoustics. If it doesn't work, it is useless to talk to many words and many sentences. So Ram Katha, as I cannot speak in a better way than Professor K.M. Pandey has spoken. It is a great tradition of this country. Starting from Valmiki and even before that, Dwivediji knows Ram is Ramante Yatra Devata, Sa Rama. And we have the various vibhaktis given in Panini's Ashtadhyayi, Rama, Rama, Rama. It is a priori existence. Rama is an a priori existence. And it has its expressions and reflections in thousands of visual and art traditions, as Pallavi has put it. Thousands. After Ramayana, I think he has said it, Bhasa's Pratima Natakam. Pratima Natakam, one of the most authentic plays on a Ramakatha. We have so many. You told you about Kritivas Oja and Kritivas Ramayana and Kamban's Ira Rama Avataram or Rava Avataram, that is there. We have Adhyatma Ramayana, this Ramayana, that Ramayana, and we also have Nepal's Bhanu Bhaktaku Ramayana. In Nepal, there is an oral singing tradition, and that Ramayana is called Bhanu Bhaktaku Ramayana. And the most elaborate details which have been given of the Indian Rama Katha tradition are there in Norman Heen's
miracle place of Mathura. Miracle place of Mathura. And thereafter there is a fad now that every Western scholar is working on the Ramlila of Ramnagar. Ramlila of Ramnagar. We have Paula Richman working on the Ramlila of Ramnagar. We have Philip Lutjendorf working on the Ramlila of Ramnagar. We have Richard Sekner as a performative circumstances from Avagar to Ramlila. These studies have been made on the Ramlila tradition. And then we have, of course, the great Anuradha Kapoor. And Anuradha Kapoor has done a great work by documenting the tradition, the dramatic tradition of Ramlila of Ramnagar. You can see the documentary there. It is available on YouTube. So my dear friends, am I audible to you to the last row? Yes. So this is the tradition. This is the Ram Katha is our life. We cannot segregate, we cannot separate our existence from Rama Katha or Rama awareness or Rama consciousness. Ram is there. Sri Ram, Rama Rameti, Rame Rame Manorame. Sahasra Nam Tattulyam Rama Nama Varanane. Very, very common sloka. So Rama is there everywhere in the folk traditions, in the representative traditions of this country. We have Rama there in Kathakali. We have Rama there in Kutiyatam. We have there Rama there in this Bhagavad Mela of Andhra Pradesh. We have Rama there in Chau, dance drama of Odisha. We have Rama in the Yatras of Odisha, Bengal, and Assam, and in some parts of Tripura too. We have Ram everywhere, as you were citing from the folklores, from the folk songs. Am I audible? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? Everywhere. राम से आप अपने को अलग कर ही नहीं सकते. और वो रासलीला जो मथुरा की रामलीला और रासलीला होती, these are great. We have the Ramlila tradition in the Nautanki style of the central. This we call the Kauravi Bhasha of Meerut and other places. Most of the dialogues are in the Nautanki style. And we have Ramlila in the Sang style of Haryana. You cannot say that we don't have Ramlila in Himachal Pradesh. We have the Bhakta tradition there. We have this Hiranaital tradition there. We have the Karyala tradition there. We have the Horing Fort tradition there in the Himachal Pradesh. Everywhere. Am I audible? इसको कम करिए जरा भाई साहब, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. इस पंखे को कम करिए. बंद ही कर दीजिए बस. My dear learned professors, so there everywhere in India we have the Rama tradition and Rama expressions, Rama reflections, Rama narratives everywhere. And particularly, I should not repeat, you have already repeated what all has been written in Sanskrit literature, right from Bhasa to the latest, even the Hindi tradition. I'm very fond of Naresh Mehta's Sansay Ki Ek Raat. Sansay Ki Ek Raat. Rama is talking to Lakshmana. देखिए कैसे कैसे डायलॉग. हर शिखर की नींव में सोया अंधेरा है, मत जगाना लक्ष्मण मत जगाना. ठीक है. And when it is decided that Lanka would be attacked, Rama says, अब मैं निर्णय हूँ सबका अपना नहीं. He doesn't want to attack Lanka. That kind of interpretation has been given by Naresh Mehta. हर एक ने अपने इंटरप्रिटेशन दिए हैं. Everybody has given his own interpretation, and Naresh Mehta is one of them. और अभी मेरे एक मित्र सुरेश काला है, लखनऊ के डायरेक्टर हैं. अमीश देवगन की तर्ज पे उन्होंने कहा मैं भी कैकेयी पे एक उपन्यास लिखता हूँ.
भाई ठीक है, आपने उपन्यास लिख दिया। फिर उसको कहा सर आप इसको ट्रांसलेट करिए अंग्रेजी में। मैंने कहा भाई इतना ट्रांसलेट करना मेरे बस का बात नहीं है। फिर मैंने अपनी बेटी को कहा तू ट्रांसलेट कर। उसने कैकेयी पे, ऐसे भी शौक चल रहे हैं, कैकेयी को ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में। तो ये चलता रहता है, ठीक है। आप कोई भी राम और सीता को इंगित करते हुए, केंद्र में रखते हुए, मोटिफ बनाते हुए कविता लिख सकते हैं, ठीक है। अनंत संभावनाएं हैं। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, लेकिन उसका प्रयोग करना आप लोगों ने नहीं सीखा होगा, ठीक है। आप कविता की लाइन शुरू कर सकते हैं कि मैं अशोक वाटिका में खड़ी हुई सीता हूँ। मैं क्या हूँ? अशोक वाटिका में खड़ी सीता हूँ। सारे जितने, यू कैन evoke all the emotions which are associated with Sita. So that kind of strength, that kind of power, and that kind of tectonic drive और great epic रामायण है। महाभारत तो और भी भयंकर है, महाभारत की तो बात ही मत करिए। राम का जो कथा है, और रामचरित मानस दैट वाज रिटन बाय तुलसीदास इन अवधि। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि तुलसीदास जी ने अवधि में इसलिए लिखा था कि और चीजों में उर्दू में ही ये मुगल लोग पढ़ लेंगे, इनको पता चल जाएगा। लेकिन अवधि में किसी को पता ही नहीं चला किस तरह से ये भयंकर, दिस रिवॉल्यूशन वाज क्रिएटेड बाय तुलसीदास, अ न्यू स्ट्रेंथ to the suffering humanities were given by this Tulsidas Avadhi Ramcharit Manas. And you said Ramayane Nigatitam Kochidanyatopi. It was not from one source. Kochidanyatopi means many other sources, many other sources. Such is the vastness of the narrative of Ram Katha, narrative of. Let me tell you, in 2008, Indira Gandhi National Center for the Arts organized a Ram Katha festival in 2008. And there I saw there were some 300 Ramayana traditions of this country presented one after another in IGNC in New Delhi. And we also had a tradition. Somebody approached me that we should also present a tradition from Garhwal. I met my friend Kusal Singh Bhandari. हमारे बड़े भाई ज्योतिष घड़ियाल जी बैठे हैं, ये रामायण पे रामायण पे काम कर रहे हैं. We decided to take our Raman performance to that great Ramayana festival. और समस्या ये थी कि भाई इसको ले गए तो मंच पे कैसे प्रयोग, हम तो खेत चौक में करते थे. It was an arena performance and we had to present it on the proscenium theatre. It was a great problem. तो हम लोगों ने, मेरे साथ प्रोफेसर एनसीईआरटी के डायरेक्टर है आजकल सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी. I said to him, he is not a theatre man, but he said there to support me. For 4 days we rehearsed with the artists. ठीक है, और फिर उनको मंच पे प्रेजेंट किया हमने. We translated the narratives and then it was a stage. I invited 2 students. मैंने कहा सीन चार्ट बनाओ. गांव वाला आदमी तो 1 घंटे आराम से बीड़ी वीड़ी पी के आता है, वहाँ सीन चार्ट बना के एक करके. And then the Professor Molly Kausal, who was the organizer of that event, she said, अरे पुरोहित जी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मंच पे जाइए. मंच पे जाके हमने कमेंट्री की. अब देखिए अपने देश में वहाँ पे एक पॉला रिचमैन एक रामायण की प्रोफेसर थी, उनको ये प्रस्तुति बड़ी पसंद आई. उन्होंने उनके ऑर्गेनाइजर्स को कहा, आई विल नॉट नेम द ऑर्गेनाइजर्स, कई इसको ये सबसे पुरानी राम कथा का रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप यूनेस्को में भेजिए. तो उन्होंने यूनेस्को में भेजा किसी तरह से, और यूनेस्को ने 2009 में इट वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड. रामायण अभी भी होता है तो इतने ग्रैंडियर के साथ होता है हर साल रामायण वहाँ.
पूरे देश विदेश के लोग आते हैं। और अब हमारे सारे बच्चे कहते हैं हमको रामायण पे पीएचडी करनी, इतनी गुंजाइश है नहीं उसमें, रामायण पे करनी है पीएचडी। मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में राम कथा के बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस नहीं है। लेट मी टेल यू, Ramayana is one which has been declared as intangible heritage of the world, and it is performed not in one village, but many other villages. I'll tell you the name. Selang is another village. Barosi is another village. Salur Dungra is there. Salur Dungra is already there. But there are other villages where this what do you call this? Jhanki. I tend to forget the words. What do you call it? Tableau. The tableau of Ram, Lakshman, and his Sita is taken out. It is in Selang, it is in Chai, it is in Thai, it is in Badagaon, it is in Dhak Tapon, it is in Tapovan, it is in Pang, it is in Subai, it is in Tolma, and it is in Dronagiri. Every year they take out the procession of Ram, Lakshman and Sita. मैं एक ट्रेडिशन बात कर रहा हूँ जो वर्ल्ड हेरिटेज घोषित हुआ है, रामायण। अब एक रामायण का देयर इज अनदर ट्रेडिशन ऑन विच जालमल्ला माय एल्डर ब्रदर ज्योतिष गिरडियाल इज वर्किंग। भाई साहब 2 लाइन सुना दीजिए। वो खड़े होकर बड़ी जोरदार तरीके से वो कहते हैं कि फला देवता की सेवा हो गई, फला की नहीं हुई। जरा जोर से बोलिए। आप, मेरा एक सौभाग्य है कि मेरी से बड़ी उम्र के व्यक्ति मेरे साथ पीएचडी कर रहे हैं। मोरी नारायणा सेव पहुंची हो, होरों की सेवनी होए। जाख महाराजा सेव पहुंची हो, होरों की सेवनी होए। अब ये दूसरी जगह और ढंग से गाया जाता है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे ये रामायण हनुमान लीला का रूप ले लेता पूरा का पूरा। और रामायण की राम कथा वहाँ पे समाप्त हो जाती है जहाँ पे लंका दहन हो जाता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और हनुमान का नाम हनुमान कम जाख ज़्यादा है, जाख है। आप देखिए, आप जो शिमला में गए हों, जाखू टेम्पल देखा होगा। Jaku temple. How do we relate the etymology of words with other places? So that is Jaku, and it is called a Jak. ठीक है, ये एक ट्रेडिशन रामायण का ये भी है। हमारी भतीजी बैठी हुई है, उसको कुछ पता भी नहीं होगा। कालीमठ वैली में जालमल्ला, जाल तल्ला, चौमासी और अपने राशि, ठीक है, मैखंडा, पाली पापंच, ठीक है, बहुत सारे गांव में इस रामायण को गाया जाता है बैसाख के महीने में। ठीक है, मैं लोकल ट्रेडिशंस की बात कर रहा हूँ। राम कथा कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। और अभी आपने somebody was talking about, हाँ, वो जो अपने एमएलए साहब थे, सीता कहते हैं हमारे यहाँ सीता जो धरती में समाई थी वो पौड़ी के पास कोट ब्लॉक में, फलस्वाड़ी एक गांव है, फलस्वाड़ी। तो फलस्वाड़ी गांव में समाई थी, इसलिए वहाँ हर साल बामन द्वादशी के दिन कार्तिक के महीने सीता का उत्सव होता है। जमीन के अंदर एक छोटा सा पत्थर गड़ा होता है, उसको सीता का सर बना के, उसका श्रृंगार करके, उस पर एक लंबी सी चुटिया बना करके उसका बड़ा उत्सव होता है। सीता लोहड़ी उसको कहते हैं, सीता लोहड़ी। ये भी एक हमारा रामलीला का ट्रेडिशन है। एक और ट्रेडिशन, लोकल ट्रेडिशन, मैंने कहा यहाँ बहुत लिमिटेड है, एक जाख का ट्रेडिशन है, जाख देवता का। तो ये जाख, वो उसकी यात्रा चलती है और यात्रा के आखिर में राम, उसके गीत गाया जाता है। ठीक है, तो उसे रावण पहुँचे बेला खी दो, लंका करीब बेला खी दो, सीता करीब बेला खी दो। एक और गायकी ये मैंने कहा यहाँ लिमिटेड है। और हमारा पिथौरागढ़ में, एनीबॉडी फ्रॉम पिथौरागढ़ हियर? पिथौरागढ़ में जो आठों के अवसर पे ठुल खेल होते हैं, सुना है ठुल खेल?
फुलखेल होते हैं उनमें, जिसमें जिसमें हिल यात्रा भी कराई जाती है, उसमें भी रामायण गाई जाती है, बाकायदा गाई जाती है, रामायण गाई जाती है। और थोड़ा सा रेफरेंस इसका हनोल के महासू मंदिर में मिलता है, किसका, रामायण का। एक वो 15 मिनट का एक गीत गाते हैं जिसको कहते हैं सीता रण। सीता रण, सीता हरण को सीता रण कहते हैं, ठीक है जी। ये ट्रेडिशन है हमारे उसके राम कथा के। लेकिन उत्तराखंड में 1860 के बाद एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन आया, वो है रामलीला का। कि सुना है आपने? 1860 में अल्मोड़ा में अंग्रेजों के सदर थे, एक एसडीएम लेवल के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था क्या, जोशी था, बोलो, डीडी जोशी, देवी दत्त जोशी, उनका नाम था देवी दत्त जोशी। देवी दत्त जोशी खुद एक अच्छे एक्टर थे और अच्छे गायक थे। उन्होंने चंपावत के एक भवानी दत्त जोशी को, जो मथुरा की रामलीलाओं में अभिनय किया करते थे, गाया करते थे, उनको बुलाया, कहा यार हमारे पहाड़ की भी एक रामलीला होनी चाहिए, ठीक है। रामलीला लिखी गई 1860 में, उसका अभिनय शुरू हुआ, उसकी धुनें एक से एक सारी बनाई गई और चलता रहा हो। उसके बाद जाके 1883 में चंपावत के किसी प्रेस से उस किताब को छापा गया 1883 में। और वो किताब इतनी इम्पोर्टेंट हुई, जरा यहाँ पे दिखाओ इन लोगों को, वो किताब, इसको उठा के दिखा दो अभी, उस टेक्स्ट को पूरे कुमाऊं लोगों को दिखा दो है इसको अभी, इस टेक्स्ट को ओपे रामा के नाम से हिमांशु जोशी ने छपवाया है। हिमांशु जोशी एंड मैनी अदर्स फील that our Ramlila is a kind of opera, is a kind of opera. इसमें सोप्रानो, फाल्सेटो, टेनर, काउंटर टेनर होते हैं ना ओपरा में। ओपरा जो है 17th सेंचुरी में इटली से शुरू हुआ था। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर थिएटर ऑफ यूरोप। ये कहता हमारा अक्सर जो पुराने हमारे थिएटर एक्टिविस्ट थे वो कहते थे हमारा ये ओपरा है। हमारा क्या है, खासकर कुमाऊं के जो स्कॉलर्स थे, प्रैक्टिशनर्स थे। और दिल्ली में देयर वर 3 प्रैक्टिशनर्स, इफ एनी वन ऑफ यू नोज ब्रिजमोहन शाह, ब्रजेंद्र लाल शाह एंड मोहन उप्रेती। They created a different kind of theater and they produced the best kind of Ramlila I have ever seen in my life. That production which Mohan Upreti and his company has produced. जिसे कहते हैं ना, I was completely disarmed when I saw the performance of that Ramlila. इसमें जरा सब वीडियो लगाओ भाई। उसमें उस पे अभी हिमांशु जोशी और अपने मर गए बेचारे वो क्या थे, शैला नहीं, वो जिसको पुरस्कार मिलता है उत्तराखंड में जिनके नाम से, अरे वो टीचर्स को पुरस्कार मिलता है उसमें, शैलेश मटियानी। I tend to forget the names now. उनका छोटा भाई है प्रेम मटियानी थे, वो भी स्वर्गीय हो चुके हैं। वो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के डायरेक्टर रहे हैं दिल्ली में। इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनाई है कुमाऊं की रामलीला पर। सुमुखी सुलोचनी प्राण पियारी रूठ रही क्यों काहे विकल मन सुमुखी। बरसा बरस पिछले लगभग 50 साल से 75 वर्ष के भुवन चंद्र जोशी अपने गांव से करीब थोड़ा, ये जो मैं हिमांशु जोशी के बारे में बता दूं, हिमांशु जोशी मोहन उप्रेती के भांजे हैं, सगे भांजे हैं। मोहन उप्रेती was a great figure in the music of Indian theatre.
He was the man who created music for Ghasiram Kotwa. He was the man who created music for the Indar Sabha. And one more, that drama, I forget the name of the drama, which is written on the eunuchs. उन ड्रामा का नाम मैं भूल रहा हूँ, उस पे भी उन्होंने म्यूजिक दिया है. And they were the people who revived पहाड़ी culture in Delhi. ठीक है, बहुत सारे नाटक बनाए, बहुत सारे गीतों की रचना की, and ultimately they established the Parvatiya Kala Kendra in Delhi. It is somewhere near the Mandi House. So this was, he's the man. He's highly gifted artist, a singer. He sings in the Indian Ocean band. You heard the name of Indian Ocean? Indian Ocean. He sings there. And he's the one, and he has produced this documentary for Indira Gandhi National Center for the Arts, Delhi. आप सुनाए जी. किलोमीटर नीचे बसे कुमाऊं के एक छोटे से शहर पिथौरागढ़ में डेरा डाल लेते हैं. 2 महीने के लिए घर, परिवार, काम काज सब कुछ भुला बिसरा कर और अभिन्न अंग बने हुए हैं एक ऐसी परंपरा का जो कुमाऊं की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, रामलीला. It is a great Induja Awasthi, the wife of Suresh Awasthi, who has written a great book in a drama, The Gift of Gods. Drama, The Gift of God. Suresh Awasthi, his wife. She has written a book on Ramlila traditions of India. So Ramlila, Induja Awasthi says that she has found only 3 traditions where Ramlila is sung out. Ramlila is presented through the musical dialogues, and these 3 traditions are the Patunda of the Khayal tradition of Rajasthan, and the Ramlila of Sang tradition in Haryana, and the third one is the Pahadi Ramlila. Pahadi Ramlila is a complete Sang tradition. और मैं आप लोगों को बताता हूँ पहाड़ी रामलीला के में एक बहुत ही मेरा ऑब्जर्वेशन है. पहाड़ी रामलीला में पल्लवी जी जो गीत गाए जाते हैं उनमें ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा शेक्सपियरन पोइट्री का कैलिबर हो या उसमें कामायनी जैसा कैलिबर हो. वो एक तरह के मंत्र बन गए प्रत्येक पहाड़ी के लिए. उसके अवचेतन मन में वो गीत, वो डायलॉग्स बैठ चुके हैं. जिस तरह से शिवानंद जी ने आरती बनाई उस जमाने में, बहुत साधारण सी भाषा में है, लेकिन वो मंत्र बन के हमारे हृदय स्थल में बैठ चुके हैं. उसके अलावा हम उस आरती को दूसरी तरह से नहीं सुन सकते हैं. हमारी रामलीला में जैसे भी गीत बनाए होंगे इन लोगों ने, जितने पॉपुलर हो गए पूरे उत्तराखंड में. सबसे पहले उसके बाद जो है वो रामलीला थी पिथौरागढ़ गई. कहाँ से? अल्मोड़ा से. अल्मोड़ा के भद्रेश्वर मंदिर में सबसे पहले वो रामलीला कराई गई थी. उसके बाद वो नैनीताल गई, फिर वो बागेश्वर गई, फिर रानीखेत गई, और फिर वहाँ के जो व्यापारी लोग थे, शाह लोग थे, खासकर बड़े कलाकार लोग थे, वो जहाँ जहाँ गए अपने साथ रामलीला भी लेके गए, उसी टेक्स्ट को लेके गए. ठीक है, वो लोग करते थे इसका करेंसी का व्यापार करेंसी सप्लाई करते थे हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे. पौड़ी गए, पौड़ी में रामलीला शुरू की. लेंसडाउन गए, वहाँ रामलीला शुरू की. वो नंदप्रयाग गए, वहाँ रामलीला शुरू की. जोशीमठ गए, वहाँ रामलीला शुरू की. कर्णप्रयाग गए, वहाँ रामलीला शुरू की. लेकिन श्रीनगर की रामलीला थोड़ी अलग थी. उसके इतिहास में मैं बाद में जाऊंगा. श्रीनगर, देवप्रयाग और दरबार साहब की रामलीला. लेकिन अब धीरे धीरे वो रामलीला इतनी प्रभावशाली हो चुकी है कि हर गांव में उसी रामलीला का मंचन होता है. बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें. मैं डायलॉग बता रहा था भाई साहब, एक डायलॉग आप गा के सुनाइए. या दर्शन, रत्नार नैना जाके मुनि जे, ये 2 बालक का के मुनि
जी। ये दो बालक शिव धनु तोड़े, जागे भाग सिया के मुनि जी। छोटे छोटे, very simple, but these have imperceptibly creeped or seeped through our consciousness that we want to hear the same language and the same music. अब हमारे यहाँ जब रामलीला होती, मैं आपको एक और फेनोमेनन बताता हूँ। रामलीला हो रही है तो अपने राकेश जोशी ऐसे घूम रहे हैं, लोगों से गपशप भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उधर हल्का फुल्का गपशप भी चल रही है, किसी का कॉलर पकड़ के कह रहे करो ये काम ठीक है। लेकिन वो हम लोग उसका, देयर इज ए सब टेक्स्ट इन आवर हार्ट्स, वे ऑल द टाइम, हम बीड़ी भी पी रहे हैं बाहर खड़े होके, फोन भी कर रहे हैं, हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, वी आर एंजॉइंग द टेक्स्ट विच बिकम्स द सब टेक्स्ट इन आवर हार्ट्स। ये उत्तराखंड की रामलीला की विशेषता बता रहा हूँ, किस तरह की रामलीला है। और रामलीला लिखने का वो टेक्स्ट मैंने 1860 का वो बताया। 1956 में अपने क्या थे वो, छम्मीलाल ढोंडियाल ने डायलॉग में टेक्स्ट लिखा, कुछ दिन चला हो लेकिन बाद में नहीं चला हो। फिर इस रामलीला में आपको एक चीज मैं और बताऊं, दिस रामलीला टेक्स्ट assimilates into itself the नौटंकी स्टाइल ऑफ सिंगिंग। नौटंकी है सर, इसमें नकारा नहीं बजा पाते, तबला बजाते हैं, लेकिन है नौटंकी। नौटंकी आप लोग जानते हैं नौटंकी क्या है? जब सुना हो एक नौटंकी का, बैरे तबील सुना हो? दर्शन ये एक्टर है वो रामलीला का जब धनुष तोड़ने जाते हैं रामचंद्र जी और ये सीता स्वयंवर में, तो दशरथ को लगता है कि अब धनुष कोई तोड़ने वाला है नहीं, तो पूरे राम वंश को जो है दुत्कारते हैं, कष्ट करते हैं। तो लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है कि हमारा वंश अभी जीवित है। तो बड़े गुस्से में लक्ष्मण का स्वभाव था, तो कुछ कहते हैं, कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। थैंक यू। ठीक है, एक दूसरा जो ट्रेडिशन हमने इनकॉर्पोरेट किया है वो है, इसमें रागिनी भी इनकॉर्पोरेट है, छंद भी इनकॉर्पोरेट है, सोरठा भी इनकॉर्पोरेट है, दोहा भी इनकॉर्पोरेट है। रामचरितमानस की चौपाइयाँ सबसे ज़्यादा है, आपने देख लिया होगा उसमें। और एक जबरदस्त एक रामायण राम कथा का एक टेक्स्ट है जो आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, राधे श्याम, पंडित राधे श्याम जी द्वारा लिखित राधे श्याम रामायण, जो मिर्जापुर से लेकर यहाँ तक फैली हुई है वो। और ये पंडित राधे श्याम वो थे जब वो उस बॉम्बई में पारसी शैली के नाटकों की स्क्रिप्ट लिखते थे। उस जमाने में 1500 रुपया पर मंथ पे अपॉइंटेड थे ये 1948 के आसपास पंडित राधे श्याम। ठीक है, तो राधे श्याम रामायण की एक तर्ज यहाँ पे अक्सर गाई जाती नहीं है, आप लोगों ने सुना होगा, ना कटी हो आई और चेहरा लहू लुहान हुआ, बतारी बहिना सुपर्ण खा तो ये किससे घमसान हुआ। वही राधे श्याम की। ठीक है, बैठे बैठे दिल उगताया, यूं ही शहर को जाती थी, चलती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। और उसके बाद नकारा बजता। ये बहुत पॉपुलर धुन रही है। ठीक है, देखिए इसके अलावा हमारे यहाँ पे पहाड़ी धुनों को भी इनकॉर्पोरेट किया गया। मैं आप लोगों की सूचना के लिए बता रहा हूँ, बहुत सारी धुनें पहाड़ी हैं वो। ठीक है, वो श्रीलंका उसमें
अशोक वाटिका में जब सीता दुखी हो रही है तो त्रिजटा उसको एक गाना गा के सुनाती है, ना रो दो सीता रानी, पापी रावण की होनी जानी। ये भी इनकॉर्पोरेट किया गया, ठीक है। बड़े एक से एक पॉपुलर डायलॉग है, मुझे इसलिए याद है, मेरा भगवान ने गला छीन लिया है, लेकिन डायलॉग सब याद है, ठीक है। तो मैं रामलीला में बहुत एक्टिंग किया करता था, ठीक है। लगभग रावण को छोड़ के सब पात्र किए हुए मैंने। तो ये रामलीला इस तरह से पूरे पहाड़ में फैली। और आज मैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं हनोल के प्रति टोन्स घाटी में गया, वहां पे यही स्क्रिप्ट हनोल में रामलीला की यही की जा रही थी। कौन सी? वो भवानी दत्त जोशी की 1883 1860 इंटू 1883 वाली। अब रामलीला के कई किस्से मैं आपको सुनाता हूं। हमारे क्या रामायण के प्रति दृष्टिकोण क्या है। हमारे गांव के पास एक गांव में जब रामलीला हुई तो मुझे भी वहां अभिनय करने के लिए बुलाया गया। ध्यान से सुनिए। तो राम की तरफ के जितने पात्र थे एक मकान में सोते और खाते थे, और रावण की तरफ के जितने पात्र थे दूर दूसरे मकान में खाते और सोते थे। और वो शौच जाते समय भी उनको स्ट्रिक्ट निर्देश थे कि खबरदार एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। जिस तरह से आपके रामनगर की रामलीला के पात्र 3 महीने से एक अनुष्ठान में रहते हैं, यहाँ हमारे यहाँ कम से कम 11 दिन के अनुष्ठान में तो पात्र रहते ही थे। इधर रख ली, ठीक है। रामलीला अब तीसरा जो पहलू इस रामलीला, पल्लवी ज्यादा तो नहीं हो रहा है, वो लोग आने वाले हैं क्या? अच्छा, वो बताइए। तो ये तो बोलने का तो कोई अंत नहीं है, मैं तो बोलता ही मैं आपको एक मथुरा श्रृंगार कार्यालय मथुरा, जहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हरियाणा, पूरे उत्तर भारत की रामलीला की परिधान सिले और तैयार किए जाते थे, बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट किए जाते थे। उसका बड़ा भारी रोल है इस रामलीला को सपोर्ट करने में। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसका। मेरे गांव में उसका सीन था, किसका? धनुष यज्ञ का। अब रावण जैसे ही धनुष को छूने के लिए बढ़ा, एक आकाशवाणी होती है कि हे रावण, तेरी बहन कुंभनशी को चोर उठा के ले जा रहे हैं। विभीषण प्रार्थना में है और मेघनाथ ये कुंभकर्ण सोया हुआ है। ये आकाशवाणी करनी थी हमारे गांव के एक लड़के ने। कोई बात नहीं। देखिए जी, ये आकाशवाणी का रोल था उसके पास। मैं बाहर से मंच के बाहर भाषण दे रहा था तो मुझे कॉल आई कि आप अंदर आइए, कोई क्राइसिस हो गया। क्या क्राइसिस हो गया? एक राजा का कोट कम पड़ गया, राजा का कोट पहनने वाला कम पड़ गया कस्ट्यूम। मैं अंदर गया, मैंने भाई क्या हो गया, कहाँ गया? पूरे थे कोट। तो पता चला जिस लड़के को आकाशवाणी करने को दिया गया था वो कोट पहन के बैठा हुआ। ये ऐसा कोई जोक नहीं है, ये मैंने अपने मैंने कहा मैं उतारो ये कोट। कह भाई साहब भैजी गढ़वाले में बोलो, भैजी मैं ब्रह्मा नहीं, मैंने आकाशवाणी करनी। और उससे बड़ी एक और घटना हुई। दूसरे दिन उसकी माँ मिली मुझे रास्ते में। उसने मुझे कहा दाता तुमने कल बहुत गड़बड़ किया। बोले क्या हुए कहाँ से हुए? बल पैर कोट उतरवाए बल तो बेचारो फट शरीर ने राशनी वाले। तो ऐसे रामलीला के बहुत सारे किस्से और कहानियां हैं। पल्लवी says that another speaker is waiting online to speak. So thank you so much. If you want, और
कल हमने 2 लड़कों को बुलाया, बहुत बढ़िया गायक हैं, जवान लड़के हैं। वो कल कुछ रामलीला का गायन करेंगे 20-25 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। थैंक यू सो मच।